Good morning students, I welcome all of you in second lecture of office automation subject. My today's topic is from first unit computer basic. First one is we will understand definition of computer. The word computer comes from the word compute, which means to calculate. Computer normally is considered to be as a calculating device that can perform arithmetic operations at a enormous speed. Computers can store information, process information and retrieve data as and when desired. So computer is an electronic device designed to accept data and perform mathematical and logical operations at high speed and display the result and also save the result for future use. Computer is an electronic device means it is an machine which is specially been programmed for the purpose of calculating and performing arithmetic operations. Arithmetic operations means it is through numbers, through different process like adding, subtraction. It is able to perform arithmetic operations at very high speed. Computer's basic work is to store informations, to process those informations and to retrieve informations wherever it is necessary. Whenever a person requires those informations, that it can get it from the computer. So it's very simple. Computer basic work is to store informations, process those informations and retrieve those informations whenever a person desires. So definition of computer is it is an electronic device which is used for the purpose of arithmetic operations or mathematical operations at a very high speed. Now we will understand what is a computer and how does it look like. In your school time, there may be a subject of computer in your school where you might have studied different basic things about computers. If I say from a block diagram, basically a block diagram of computer is an input which is given through input devices. Then those input may be in the form of information, it may be in the form of a worksheet, it may be form of a image, video or any other informations through input devices like keyboard, mouse, joystick. This input goes into the next part is the control unit, the processor, that is the CPU, central processing unit. In central processing units, it is containing three components. One is control unit, main memory, RAM and auxiliary storage. You can see from the book that a block diagram of a computer, how a computer looks like. कंप्यूटर्स के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दैट इज वी हैव टू स्टडी. तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स में आप देखो तो वी हैव इनपुट, वी हैव सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर्स माना जाता है, राइट. आपने कीबोर्ड देखा होगा, एलसीडी स्क्रीन देखी होगी ये कंप्यूटर्स की, और जो एक लाइक ए बॉक्स आपको दिखता है,
दैट इज सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर ही सारी मेमोरीज उसमें स्टोर होती है, जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उसमें स्टोर होती है। तो एक सीपीयू जो है एक बड़ा यूनिट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी। वी हैव कंट्रोल यूनिट, we have ALU, that is arithmetic logic unit, and main memory, RAM, auxiliary storage, and last is output। मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस फीड की है उसको आउटपुट, मतलब हम बाहर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। We will understand different parts of a computer from a block diagram of a computers। मतलब हर एक यूनिट के फंक्शंस क्या है, कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। फर्स्ट वन इज इनपुट। तो इनपुट मतलब है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इनपुट एक्चुअली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी डेटा यूजर्स के द्वारा, राइट, या कोई इंस्ट्रक्शंस के द्वारा वो कंप्यूटर सिस्टम्स को हम देते हैं। एक तरह से हम कहेंगे कमांड देते हैं। हमको कंप्यूटर्स में करना क्या है, राइट, वही हमारा इनपुट होगा। हम कीबोर्ड से टाइप करना चाहते हैं, हम कीबोर्ड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, हम कीबोर्ड से कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम कीबोर्ड से कुछ और वर्क करना चाहते हैं। तो ये एक इनपुट जो है यूजर्स कोई इंफॉर्मेशंस के द्वारा, कोई डेटास के द्वारा, कोई इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर सिस्टम को देगा। तो ये इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट कंप्यूटर्स को मिलता है। इनपुट इज द रॉ इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट एक रॉ इंफॉर्मेशंस है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि एक कंप्यूटर्स को एक इनपुट डिवाइसेस के द्वारा मिलती है। Data is accepted by a computer through the input device attached to it. It is a collection of letters, numbers, images, audio, video, etc. Data is, as I have said, it is accepted by a computer through input devices, right, connected to a computer. And this data may be in any form like letters, numbers, images, audio, video, etc. So this is the data which goes in a computer through input devices. So input devices like keyboard, mouses, right? There are other input devices like joystick, web cameras, magnetic pen, touch screen, smart card reader, digital reader, light pen, trackball, microphone, barcode reader, etc. तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इंफॉर्मेशंस को फीड किया जाता है, स्टोर किया जाता है कोई भी कंप्यूटर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड तो सबको मालूम होगा, कीबोर्ड, माउस भी मालूम होगा सबको। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का मतलब होता है कि एक माउस की तरह एक जॉयस्टिक वर्क करती है। जैसे कई मोबाइल फ़ोन्स में आप देखते होंगे एक पेन साथ में आती है, मैग्नेटिक पेन बोलो उसको, राइट। वेब कैमराज हो गया, सीसीटीवी कैमराज हो गया, राइट, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, जैसे हमारे आजकल के मोबाइल फ़ोन है टच स्क्रीन, तो एक टच स्क्रीन जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम टच स्क्रीन पे टाइप करेंगे वही मोबाइल परफॉर्म करेगा। स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, जैसे कार्ड रीडर हो गया, मेमोरी कार्ड रीडर हो गया मोबाइल फ़ोन का, डिजिटल रीडर्स हो गए, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ईयरफोन, राइट, बारकोड रीडर्स। लाइब्रेरी में आप देखो तो आजकल बारकोड रीडर्स, मतलब कोई भी बुक्स के पीछे उनके बारकोड नंबर्स दिए रहेंगे, जाकि वो बारकोड रीडर के द्वारा सारी इंफॉर्मेशंस बुक की हमको मिल जाएगी। सो फर्स्ट वन इज input, right? So input may be in the raw form like images, numbers, letters, audio, video, etc. Second step or second part of a computer, that is processing. Processing means whatever the input which is given to the computers in different form, now
it is able to perform arithmetic operations or logical operations on data in order to convert them into useful information, right? So processor is used for processing that informations, right? So whatever the data as per the given instruction, process will be done. So it is totally internal process of computer system, the heart of the computer. This is the component that actually executes instruction. प्रोसेसिंग में कौन कौन से पार्ट आता, मतलब एक जनरली सीपीयू प्रोसेसिंग कहाँ पे टेक प्लेस होगी? एक सीपीयू के अंदर में 3 कंपोनेंट बेसिक होते हैं, राइट? एक एएलयू होता है, उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है, और लास्ट होता है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू की बात करें, मतलब जो एक कंप्यूटर्स के साथ बॉक्स के टाइप्स में बना रहता है, उसके अंदर हम बोलेंगे कि वो कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, राइट? क्योंकि सारी चीज़ें वहीं प्रोसेस होगी। आप कोई भी इंफॉर्मेशन दो तो वो जाएगी कहाँ? सीपीयू के अंदर जाएगी, पार्ट्स में जाएगी, तो उसको ब्रेन कहा गया है, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। In addition to this component, many other make it possible for the basic component to work together efficiently. CPU 3 टाइप में हम कंपोनेंट में डिवाइड रहता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोसेस होती है वो हम सीखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट इट इज ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विथ इन ए CPU. The arithmetic logic unit of a computer system is the place where the actual execution of instructions takes place during processing operation. It means first the informations which is given in the form of input devices, in the form of video, worksheet, different other informations, first it goes into CPU's first component, that is arithmetic logic unit. What is this arithmetic logic unit, right? उसका मतलब है कि कोई भी डेटा आप इनपुट करोगे, सबसे पहले सीपीयू के अंदर जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम का कंपोनेंट है, वहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर्स के किए जाते हैं। ये अरिथमेटिक में क्या है कि कंप्यूटर्स को सिर्फ कौन सी लैंग्वेज आती है? वो खाली 2 ही नंबर्स जानता है, 0 और 1। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, और जो ALU है सीपीयू के अंदर, उसका काम ये होता है कि ये बेसिक ऑपरेशंस जो है, एडिंग है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, लॉजिकल ऑपरेशंस है, जैसे प्रोग्रामेबल डिवाइस ऑलरेडी वहाँ पे फीड किया हुआ है। कंपैरिजन सच एस लेस देन 1 हम बोले, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो कंप्यूटर कर सकता है। तो कौन से कंपोनेंट में होता है वो? ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट मतलब कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड गाइड द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा and informations. Control unit sends control signals unit. The required operations are done properly by the ALU and memory. So control unit, who is a control unit? Who is controlling it? Right? In a CPU, control unit is the component where entire informations will be controlled. Means entire process which is taking place will be controlled. So control unit will be controlling and guiding the flow and manipulation of all data of informations. So this control unit sends control signals to required operations are done by ALU and memory. जो भी बाकी के मतलब CPU का काम होता है कंट्रोल यूनिट का कि कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा है तो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको कंट्रोल करके गाइड कर सकते हैं वो, राइट? बाकी जितने भी वर्क है, राइट, वो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्लीट करता है या मेमोरी में स्टोर होते हो। थर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन।
Memory unit is that part of the computer where the data is stored and is accessible to CPU. Right? It means now memory unit, entire informations which will be stored will be inside memory unit. Now what are this memory? There is a calculation. जैसे मैं बोलूँ कंप्यूटर्स को सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज आती है, उसी तरह हम बोलेंगे कि कंप्यूटर्स के अंदर कुछ भी जैसे स्टोर होगा तो कौन से फॉर्म में होगा, तो उनके लिए जैसे बिट है, बिट बाइट, उनका अलग ही मेजरमेंट है, निबल एक्सेट्रा है, राइट। ये बिट हो गई, एमबी हो गई, तो ये सारे जो मोबाइल में भी हम कहते हैं स्पेस है, तो वो कैसे होती है, वो बिट के मतलब वो स्पेस दिखा रहा है कि कितना स्पेस इसमें रिक्वायर्ड है। कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल बनती है तो कितने स्पेस में बनती है, कितने केबी की है, वो इम्पोर्टेंट मैटर करेगा। तो ये मेजरमेंट यूनिट्स है। बट सीपीयूज में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज एएलयू, उनका काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। कंट्रोल यूनिट जो ओवरऑल कंट्रोल और गाइड करता है कोई भी एक प्रोसेस को। और मेमोरी यूनिट जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक परमानेंट मेमोरी है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है, स्टोर होती है, जब भी हमको रिक्वायर है तो हम वहाँ से ले सकते हैं। थर्ड important functions or the part of a computer is called output. Output is the processed data given by computer after data processing. Output is also called as result. The process of producing useful informations or results for the user, such as a printed report or visual. Output devices are used for getting information from a computer. So output devices or output is a component where the informations will be ready to execute, ready to take out in a printed form. Examples: output, it is a result of whatever the user has feeded informations into the computer. So input, where we are giving information through input devices के द्वारा कोई भी कंप्यूटर्स को हम इंफॉर्मेशंस उसमें उनको देते हैं, राइट। और आउट, जैसे हमने एग्जांपल सिंपल एक प्रोजेक्ट टाइप किया तो वो इनपुट है हमारा। तो आउटपुट क्या होगा कि हमको प्रोजेक्ट का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, प्रोजेक्ट का हमको प्रिंट आउट चाहिए, तो आउटपुट कैसे हमको उसका मिलेगा, तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हमको इंफॉर्मेशंस हम ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में भी बाहर निकाल सकते हैं, राइट। सो आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर्स। ये आउटपुट का मतलब हो जाए जिसके थ्रू हम वो इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं। हमने कोई इंफॉर्मेशन टाइप की, मगर कौन से फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर हुई, तो रैम में स्टोर हुई, वर्ड के फॉर्म में स्टोर हुई, तो वो इंफॉर्मेशंस हम देख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, राइट। तो प्रोसेस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशंस और रिजल्ट्स फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल output devices are used for getting informations from a computer. So this was the block diagram of a computers and introduction about computer, right. Now the next topic, that is characteristics of a computer. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर की क्वालिटीज़ क्या क्या है। कोई भी एक कंप्यूटर्स है तो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, राइट। गुड एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टिपिकल मॉडर्न डे कंप्यूटर आर, फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी। Computer is very accurate, right. The result given by the computers are accurate.
they work on the principle of GIGO, which means that the garbage in and garbage out. This implies that if we give the right input to the computers, we will get the right output. If the data and the set of instructions entered into the computers are correct, then the result produced will be accurate. So फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ए कंप्यूटर्स की ये है कि कंप्यूटर्स बहुत ही एक्यूरेट होता है. एक्यूरेट का मतलब है जो कि 100% राइट होता है. हम कह सकते हैं कि जैसे कई बार एक ह्यूमन एरर, मतलब हम लोग से गलती हो सकती है, मगर एक जो कंप्यूटर है उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि एक मशीन है, प्रोग्रामेबल मशीन है. उसको जो उसमें जो इंफॉर्मेशन रहेगी वही इंफॉर्मेशन आपको निकलेगी, दिखेगी, मतलब जो है वो दिखेगा आपको. मगर एक ह्यूमन बीइंग है तो उसमें एरर्स आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको 100% एक्यूरेट नहीं मिल सकती है, उसमें मिस्टेक होगी. मगर एक कंप्यूटर्स के द्वारा किया गया कोई भी काम परफेक्ट मिलेगा, आपको एक्यूरेट मिलेगा, 100% करेक्ट मिलेगा. यही सबसे पहली खासियत है कंप्यूटर्स की, राइट. कंप्यूटर्स कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है? गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप अच्छे दे रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, राइट. तो जैसा दोगे वैसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कंप्यूटर्स के द्वारा, राइट. और अगर हमने एक करेक्ट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी है तो वो हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन भी देगा. तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड. A computer can perform complex mathematical and statistical calculations at a very high speed. Computers are known for working at a very high speed. They can perform a task in the fraction of a second, for which a normal person would take hours, right? The computer speed is measured in terms of milliseconds, microseconds, nanoseconds, or picoseconds, right? So speed is very important. What kind of task a computer can perform? That is arithmetic task, then mathematical task and statistical calculations are done at a very high speeds. तो कंप्यूटर की दूसरी सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो स्पीड के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइसेस है, एक मशीन है जो कि कोई भी काम बहुत फास्ट करता है, राइट. कुछ सेकंड्स में वो काम हो जाता है, बहुत ही फ्रैक्शंस, मतलब सेकंड्स के भी छोटे पार्ट्स में कंप्यूटर्स काम करके दिखा जाता है, मतलब बहुत ही स्पीड फास्ट होती है. आजकल आप कंप्यूटर्स देखोगे तो उसमें स्पेस भी ज़्यादा रहती है और बहुत फास्ट होते हैं प्रोसेसर, लेटेस्ट प्रोसेसर्स होते हैं. मोबाइल फ़ोन में भी आप देखो तो आजकल लेटेस्ट प्रोसेसर्स आ गए हैं. तो यही इम्पोर्टेंट खासियत है. कंप्यूटर्स आर नॉन फॉर वर्किंग एट ए वेरी हाई स्पीड. कंप्यूटर्स को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो बहुत ही फास्ट काम करते हैं और कुछ ही फ्रैक्शंस के सेकंड में वो काम करते हैं, जैसे कि मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड्स में काम वो ख़त्म कर देते हैं. तो स्पीड इज़ वेरी हाई. दैट इज़ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी. वर्सेटैलिटी मीन्स it is ability to change or ability to perform different types of jobs. versatile का मतलब होता है कि जो कि अलग अलग यूनिक टाइप होता है, एक ही एक चीज़ के काम नहीं कर सकता है. कंप्यूटर के पास आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है. वो टाइप भी कर सकता है, राइट. वो पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकता है, वो कैलकुलेट भी कर सकता है, वो इंटरनेट के लिए भी यूज़ होता है. मतलब एक कंप्यूटर जो है उसका काम एक नहीं है, वो अनेक काम कर सकता है, बहुत ही खूब तरीके से, फास्ट तरीके से, एक्यूरेट वे में वो काम कर सकता है. यही सबसे बड़ी खासियत है.
तो वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि जो कि अलग अलग टाइप के टास्क कर सकता हो चेंज करके। सो कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली एट सेम टाइम। एक ही साथ आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो, एक ही साथ आप टाइप भी कर सकते हो, एक ही साथ आप अलग टैब में दूसरा काम भी कर सकते हो। वर्सेटाइल ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कंप्यूटर्स के द्वारा हम एक चीज़ नहीं बल्कि और एक साथ हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। For examples, while you typing a document in MS Word, you can listen to music at the same time. It also gives you a platform for performing different tasks such as drawing, painting, typing and calculating. तो एक ही साथ हम कितने सारे टास्क कर सकते हैं, जैसे कि हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो वर्सेटैलिटी ये अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, मतलब बहुत सारे टाइप के काम कर सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाई स्टोरेज। कंप्यूटर हैज अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। दिस stored data can be retrieved whenever required. It can store a large amount of information in a very small space. The information stored can be recovered instantly and correctly whenever desired. तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई स्टोरेज। मतलब स्टोरेज का मतलब होता है स्पेस। कंप्यूटर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही एक्यूरेट है, स्पीडियर है और साथ साथ उसमें यह भी क्षमता है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास स्टोर करके रखे, राइट। क्योंकि उसके पास एक रैम होता है, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ऑलरेडी सेव रहते हैं। तो आप 1 साल बाद भी कोई चीज़ देखना चाहते हो तो वो उसमें कंप्यूटर्स में ऑलरेडी पड़ी होगी, स्टोर होगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कंप्यूटर्स का, कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है और जब भी ज़रूरत पड़े वो इंफॉर्मेशंस को हम फोल्डर्स के थ्रू, राइट, हम वापस भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। और आजकल कंप्यूटर्स के स्टोरेज की बात करें तो इतनी ज़्यादा स्पेस कंप्यूटर्स दे रहे हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं, राइट। नाउ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिलीजेंस। The computer never gets tired or bored at the same task doing again and again. Being a machine, computer does not suffer from boredom or lack of concentration and continues to work with the same accuracy till power is supplied to it. It does not lose its strength and efficiency, which are its speed and accuracy. ये सबसे बड़ी खासियत है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर कंसिस्टेंट है, इंसान की तरह नहीं है कि इंसान एक दिन खुश रहता है तो अच्छा काम करेगा, दूसरे दिन खुश नहीं है तो अच्छा काम नहीं करेगा, राइट। एक इंसान को आलस आता है, एक इंसान थक जाता है, राइट। ये सारी परेशानी कोई ह्यूमन बीइंग में आ सकती है, उसके प्रॉब्लम्स के कारण वो काम नहीं कर पाता है। मगर कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो एक मशीन है, उसके अंदर फीलिंग्स है ही नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। उनको तो जो काम दिया जाएगा वो काम करेगा। उसको आप बोलोगे कि ये इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करो कभी भी, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे, कोई भी टाइम, क्योंकि कंप्यूटर्स को जब तक इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मिलती रहेगी तब तक वो काम करता रहेगा। ना वो थकेगा, ना उसकी स्पीड कम होगी, ना उसकी एक्यूरेसी कम होगी, कुछ भी नहीं कम होगी। वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है बेखूबी। ये सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि जो कि कंसिस्टेंट रहता है, राइट, एक जैसा, चाहे कब भी उसको काम करवा लो वो उसका एक जैसा ही कंप्यूटर्स का टास्क रहता है। तो ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नो फीलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर जो है उसकी कोई फीलिंग
नहीं रहती है। फीलिंग क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, कंप्यूटर्स एक मशीन है, तो उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होगी। जैसे लास्ट टाइम एक रजनीकांत की मूवी आई थी रोबोट, जिसमें वो एक रोबोट बनाता है, तो रोबोट जो बनाता है उसमें सारी चीज़ें होती है कि बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही स्पीडियर काम करता है और अच्छा काम कर सकता है। मगर उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ना वो रोएगा, ना वो हंसेगा, वो एक ही टाइप का उसका बिहेवियर रहेगा। उसको आप ऑन करो तो वो वैसा ही काम करेगा, क्योंकि वो मशीन है। मशीन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहती है। तो कंप्यूटर डू नॉट हैव any type of feelings. This gives rise to getting accurate and unbiased results. The job that was earlier done by a number of people can be completed with just a few person who have the knowledge of the computer. They can perform it more accurately and efficiently. That is how a computer has reduced the need of manpower. तो computers जब भी आए तो इनके कारण बेनिफिट ये हुआ कि जितने भी मैन पावर है, जितनी रिक्वायरमेंट है, आज की डेट में हम इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले तो वहाँ पे धीरे धीरे मैन पावर जो होती है, मतलब नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन एनी इंडस्ट्रीज़, तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए। सारी चीज़ें कंप्यूटर्स ही कंट्रोल करती है। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरर है, मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले लो, तो मारुति सुजुकी पूरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग होंगे, राइट? क्योंकि सारा काम जो है मशीन्स के द्वारा होता है, सारा काम मशीन्स करती है। एक मैन पावर जो है वो ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है, बाकी सारे काम से एक मशीन्स कर सकती है और बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकती है, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर्स का, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें काम कर सकता है, अच्छी तरह कर सकता है, बेखूबी कर सकता है। तो दिस वाज द यूनिट फर्स्ट वन, कंप्यूटर बेसिक, इन दैट टुडे आज जो हमने टॉपिक किया वो कंप्यूटर्स के बारे में हमने थोड़ा समझा। उसके बाद कंप्यूटर्स कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस है, राइट? और लास्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर्स भी किया, जहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर्स की है वो हमने समझी, राइट? सो थैंक यू एवरीवन।